Okay, we met through the social media where Mr. Abhinav. First reaction when you saw her. Yeah, damn it, man. what I like about Ketu, I can't tell Ketki because she will let like. Yeah, How are you feeling? good, very exciting. Nervous a little bit. That is destiny, isn't it? Yes, the world is round. अगर उसके बाद में कुछ बुरा बोलने का नहीं उसके बाद कुछ नहीं है बुरा बोलने के लिए मेरे पास नहीं 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 बिल्कुल चाहिए ना कौन सा गोवा का क्या है गोवा में कुछ नहीं है गोवा में कुछ नहीं Hi. Hello. मस्ती खोर हेलो हाँ ये फिर से चालू करा वो घर में शेर बाहर बिल्ली बनती थी मैं बोलना चाहता कि ये रसम और सोल कड़ी का ये अच्छा होना चाहिए ओहो अभी बराबर है नहीं मैं अभी को बोलते कि रेडी करके रखने का क्या तो लगा ये भी थोड़ा चेंज कर दिया क्यों वाइट किया अच्छा जा रहे हैं अच्छा लग रहा है। हाँ ये मेरा ही कॉपी किया दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है दिल जान जिगर तुझ पे Kirki and me, we haven't met physically with each other. We met through the social media where we called Facebook that day, where we used Facebook more. And I got a hi from the unknown girl where I was not aware like whom she is. I got a request from her. I started chatting with her, get to know about her, and we started to know each other. Then we made a good friend. We had a good friendship between us. Then after that, I started liking her. Okay, so that bonding from unknown girl to the good person and then becoming the love of my life. That journey was simply amazing. So that's how we meet actually through the Facebook and getting into my life. That's actually the amazing part. So it's like almost 10 years we have been with each other, facing all the ups and downs. And I like most about her is like she stood beside me in my ups and downs. Whatever we faced it together. And that bond between me and her, it's like I can't imagine. Me and Abhi, so we met exactly 10 years ago, and our grandparents used to stay at the same building in Bandra, but we did not meet like personally. And in 2014 we met through Facebook. So the story was actually his elder brother Abhijit. We were friends, like FB friends, so hi hello चलता था हमारे बीच. So एक दिन मैं ऐसे ही text करने गई and I typed Abhi, like Abhijit. I want to type Abhijit करके. तो Abhi and Engur, there were so many names. So I realized later that I texted the wrong person, and that wrong person was Abhinav Engur. So that's how the story started. So it is again a funny story. I had seen him when I was in 6th standard actually. So that time I didn't know him, I didn't know his name or who he is personally. और तभी वो लाइक कॉलेज में था, तो उसका जो लाइक अजीब हेयर स्टाइल, अजीब ड्रेसिंग, तो एक दिन मैंने उसको देखा एंड आई जस्ट सेड लाइक
आई लाइक जजमेंट एक पास करते हैं ना, वैसे मैंने उसको लाइक मैंने मन में बोला कि क्या छपरी लड़का है. So it was my first reaction, but I didn't know that later on, exact cut to 6 years later, that I'll fall for the same guy. Actually, we did not propose each other, never. But we used to chat through Facebook only. So after 6 months, we met. So we just confessed to each other. First, he told me that he likes me, but back of my mind, I was thinking कि कैसे होगा, मतलब 2 different cultures, 2 different languages, पूरा अलग state है, मतलब महाराष्ट्रियन एंड मलयालम. तो फिर मुझे उसका बैकग्राउंड, मतलब उसकी फैमिली या फिर मुझे पता नहीं था. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड क्योंकि ही इज़ वेरी स्वीट बॉय एंड आई डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज हार्ट. सो वो सब सोच के देन आई ऑल्सो फॉल फॉर हिम. Abhinav, he's a pure soul and he has a heart of gold. He is very kind and like anyone can be very, he makes everyone comfortable. He's a very, his personality is very jolly, fun loving, and you will never get any negative vibe when you're around him. He's always full of positive energy. He does not have any hatred or any grudges about anyone. He's full of love. Always, like I would say this moment only, the wedding, because it was, it's like a dream comes true. Like after 10 years, it's so hard to, like, जब we were dating, तब we used to say like, okay, 8 years बाद शादी करेंगे. बट मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि आज वो दिन आ गया. एंड येस, ही डिड एवरीथिंग एज ही प्रॉमिस्ड मी. ही केप्ट हिज प्रॉमिस. फॉर अभी आई हैव टू टेल यू दैट जैसे अब तक हम साथ में रहे, जैसे एक दूसरे को समझा, विल बी लाइक दिस फॉर एवर. एंड इन योर अप्स एंड डाउन्स, जब भी कुछ स्ट्रेस या फिर किसी भी डिफ़िकल्टी में, आई विल बी योर शील्ड एंड आई विल बी राइट देयर फॉर यू forever. Love you. So yeah, first reaction was like, yeah, she's very cute. And yeah, actually we talked a lot before, like we chatted a lot before meeting with each other. So we decided to let's meet somewhere where we can see each other. And when I saw her, it was like, yeah, she's the cute girl which I have ever known. So we started talking and all, and then I realized like, okay, now I had to take a step ahead. Like I am from the friendship, I started liking her. When her face, her cuteness and all, her smile, especially her smile, that's actually the beautiful part of her face, her smile. I was like afraid, like how can I tell her like I like her. Then I thought like let it go. I will not able to tell her like, okay, I liked her. The afraid of losing her, like if I'll tell her that I'll lose the friendship also. So I didn't tell her like I liked her, but she knew in somewhere like she was the girl which I was liking. She only forced me, okay, who's that girl, tell me, let me know and all. She was aware like in the back of the mind like she's the girl, but she wanted to hear from me. So I was since I was afraid, then I didn't tell her you like me, then I like you too. So that's how our story begins. Say what I like about Ketu. First thing I want to tell, like she's a very, very, very supportive girl. She loves me. That's the important part. But the important part, another part is like she respects me a lot. Not only me, but my family. That I love the most. And she's very, very, very caring in nature. Very progressive girl. Very caring in nature. She loves me a lot. Like I don't love her that much, but she loves me like more than me. Whenever I'm with my family, I pretend to call her Ketki, which she gets mad like anything. Like why you want to tell me that word? I don't want to listen that word from your mouth ever again. So just call me Ketu or anything else, but not Ketu. That's the biggest funniest thing I liked about her. Like she wants me to call her the Ketu because she as per her, the Ketu, like when I call her Ketu, I'm her only. We have been dating for like almost 10 years, right? And we haven't tell anybody about our relationship.
especially my families and my friends. My friends is okay, they were okay, like okay, you have a girl, okay, that's good. But my family, everyone knows me and Ketu. Only my mom doesn't know about her. And she was like, when you will tell your mom, कब बताओगे, कब बताएगा, and all ऐसा. So I was like, wait, let the time comes, I will tell my mom, I will tell my mom. But the funniest part is like mom get to know that relationship from everyone else. Like she's like, मुझे ही नहीं पता, but दुनिया वालों को पता है. So mom only came up to me like, who is this girl, and also I was like, okay, oh wow, तुझे कैसे पता चला? So it's like कि मुझे सबने बता दिया है, but तू बता कि तेरा क्या है? So I was like, okay, हाँ ये है, she's a girl which I am looking for it, and she's a sweet girl. So she only told me like, okay, ऐसा है तो मुझे मिला ना, तो okay हाँ मैं मिलाता हूँ. So when I told this thing to Ketu, she was actually doing her job. She was in Goa at that time and doing a job. When I told her about this thing, okay, mom wants to meet you, and she was like on cloud nine. Okay, what? Mom, how did mom came up to know about this and all? So she was like, okay. I told her again that mom only came up to me and she told me to she wants to meet you. She was very happy about like mom came up to know about this, and she was actually agreed to meet her. Ketu, I know like you also know that we love each other. We stood by each other like all in our ups and downs, and you know like I'll be there with you in any given situation. I'll be there with you. But one thing I like to say, like you are the girl which I need the most. I really love you. Your smile makes me happy, so just keep smiling for me.
वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहा मैनू दिसदा नी कोई तुझे आवे तैनू सीने नाल लावां तुझे आवे तैनू सीने नाल लावां नी तेरे जया नी तेरे जया होर दिसदा छेती आ जा हुण तक नी हरावां छेती आ जा हुण तक नी हरावां नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा। अभिनव के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम ही है। वो मेरा राइट हैंड, एक मेरा अभिजीत है राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। हर जगह मेरा सपोर्ट किया है। इज़ अ वेरी नाइस बॉय, स्वीट बॉय आई शुड से। ऐसा बच्चा मिलना बहुत मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ऐसा बोलना सकते हो। बहुत मस्ती था, बहुत मस्ती था, इतना गिरता था पड़ता था, उसको तो सामने का दीवार भी दिखता नहीं था, जाके ठोकता था वो, थोड़ा ज़्यादा मस्ती था वो। तो एक बार वो झूले में बैठा था तो वो एकदम ऐसा सिर के ऊपर ही गिरा था, तो उसका जो इधर जॉ का इधर ही एकदम लगा था। तो उस टाइम उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ थी, उसने उठाया था क्योंकि मेरे पास उतना दम नहीं था कि उसको उठाने का। लेकिन उसका जो उसको जो रो रहा था ना अम्मा अम्मा करके, मैं तो बाहर ही आ गई। तो मुझे बहुत फीलिंग हो गया था कि छोटा बच्चा था ना वो, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई थी उस टाइम। ये मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। केतकी को तो मैं अभी 2 साल से जानती हूँ। वो बहुत स्वीट लड़की है और वो मेरे लड़के की वाइफ बन के आ रही है। मैं वो खुशनसीब समझती हूँ। मैं उसको अपनी लड़की की जैसी समझती हूँ। एकदम अभिनव के लिए एकदम परफेक्ट मैच है वो। और शी इज़ वेरी इमोशनल, वेरी अटैच्ड, लविंग। बस मैं यही चाहती हूँ कि दोनों जन अच्छी तरह रहे, मीन्स लाइफ में कभी उनको कभी कोई तकलीफ़ ना हो और हमेशा खुश रहे। मेरा ये ब्लेसिंग है उन दोनों के लिए। शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। वो मेरे घर में आती है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। मैं एक्चुअली केतकी को मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी वो हमारी फैमिली में जुड़ रही है, हमारी एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मुझे उसको बोलना है कि वो हमारे घर में ऐसा डॉटर आ रही है, नॉट ऐसा डॉटर इन लॉ, और उसको हमारे घर में फुल स्पेस, फुल फ्रीडम, पूरा प्यार और अफेक्शन मिलेगा और हमारा प्यार उसको हमेशा मिलते ही रहेगा। उसको मैं अपना डॉटर की जैसे ही समझूंगी। कभी उसको कोई ऐसा मैसेज नहीं हो कि उसकी मम्मी की कमी हो, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मैं तो उसको पहले से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अभी तो वो खाली अंदर घर में आना बाकी है बस। केतकी माझं हृदयाचा तुकडा आहे, होलमार्क सोनं आहे, ते मी अभिनवला देत आहे। आणि मुलगी कमी, मैत्रीण जास्त। प्रत्येक छोटी छोटी गोष्ट मी तिच्याशी शेअर करते माझ्याशी। खूप म्हणजे घरामध्ये मिळून मिसळून राहणारी अशी सर्वांची, तिची कमी मला खूप पसंत आहे। मी म्हणजे घमंड करते मुलीवर की मला गोवाडणे अशी मुलगी दिली। खूप छान, ब्युटिफुल, सर्व गुण संपन्न अशी एक आठवण आहे की छोटी होती आणि तिला कंट्रोल करण्यासाठी धावते पळते म्हणजे एक फळी लावली होती घरामध्ये आणि त्या फळीच्या आतून ती किचनमध्ये गेली। अभिनवबद्दल शब्द कमी पडत आहेत। जावई नाही तो माझा, पण
मुलगा आणि मित्र असं आहेत. अभिनवबद्दल शब्द माझ्याकडे खूप कमी आहेत. आणि खरंच जेव्हा मी त्या मुलाला त्याला भेटली मी ना, तेव्हा मला असं वाटलं की खूप म्हणजे खूप माझ्या मुलीला तो प्रेमामध्ये म्हणजे प्रेम करणार आणि सुखात ठेवणार हे मी पाहिलं. अजून मी काहीच नाही पाहिलं. म्हणजे त्याचा स्वभाव इतका एकदम म्हणजे सांगते ना, माझ्याकडे शब्द कमी पडत आहेत अभिनवसाठी. आणि खूप तो सुखात ठेवणार हे गॅरंटी. मला त्यांच्या फॅमिलीबद्दल पण अभिनवच्या काहीच मला शंका नाही. खूप म्हणजे खूप माझ्यापेक्षा तिला सुखात ठेवणार. 101% गॅरंटी देऊन सांगते. अभिनवच्या मम्मीने सांगितलं माझी मुलगी आहे ती असं, तर तो शब्द मला खूप आवडलेला आहे. मुलगी आणि तसंच राहणार हे माझी गॅरंटी. आणि तसंच ठेवावं. माझ्यापेक्षाही त्या प्रेम करतात हे मला दिसून आलं. अभिनवची मम्मीसुद्धा मस्तीखोर आणि समजदार. ओवर एक्साइटेड. हाँ, और एक्साइटेड. केतकी बहुत मस्तीखोर थी. उसका चॉइस तो लाइक बहुत डिफरेंट था बचपन से ही. जो हम लोग को पसंद आता था वो उसको कभी नहीं पसंद आता था, और वो कुछ भी उठा कर लेके आती थी. अभी लाइक बड़े होने के बाद उसका चॉइस लाइक काफ़ी अच्छा हो गया है. लाइक उसका चॉइस हम लोग से भी अच्छा है. और बचपन में वो बहुत ज़िद्दी थी, अभी भी ज़िद्दी है. जो चाहिए वो चाहिए, ऐसे ही था उसका. और बचपन में हम लोग का मतलब वैकेशन में हम लोग जब दादी के घर पे जाते थे, तो ये घर पे मतलब ये छोटी थी तो ये मम्मी के साथ में रहती थी. तो हम लोग का जो भी मेकअप का जो भी बॉक्स रहता था ना, ये खोल के पूरे मुंह को लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठती थी. और हम लोग फ़ोन करते थे तो हम लोग को बोलते थे मैंने तुम लोग का कुछ भी नहीं यूज़ किया. और घर पे आने के बाद जब हम लोग देखते थे तो इसने पूरा सब खराब करके रखा हुआ रहता था. और फिर हम लोग भी उसको चिल्लाते थे. और एक याद है कि वो घर में शेर बाहर बिल्ली बनती थी. क्योंकि वो घर में बहुत दादागिरी दिखाती थी हम लोग के ऊपर, और बाहर कोई उसको परेशान करता था तो फिर वो स्पेशली मेरे पास आती थी. क्योंकि वो फर्स्ट में थी, मैं 4th में थी. हम लोग के बीच में 4 years का एज गैप है. तो वो ज़्यादा करके मेरे पास आती थी कि दीदी मुझे उसने परेशान किया. फिर मुझे उसके साथ झगड़ा करने जाना पड़ता था. फिर मैं इसको भी डांटती थी. अभी भी डांटती हूँ मैं उसको कि तू घर में शेर बनती है, बाहर बिल्ली बनती है. अभिनव लाइक अभी तो ऑफिशियली वो मेरा जीजू बन गया है. बट ही इज़ लाइक अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. एंड ही इज़ लाइक वो पहले से फ्रेंड है हम लोग का. तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है लाइक वो जो होता है ना फॉर्मेलिटी या फिर ऑकवर्डनेस, ऐसे कुछ नहीं है. इवन केतकी से भी ज़्यादा हम लोग उसके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं. अगर कुछ भी हो तो उससे ज़्यादा शेयर कर सकते हैं. ही इज़ अ सेंसिबल एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन. लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर. अभिनव मेरा शरारती भाई. मैं तो उससे बहुत चिढ़ाता था बचपन में पहले तो. बट वो चिढ़ता था लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता था. लेकिन हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहा है और मुझे सपोर्ट भी किया है. हमारा बचपन काफ़ी अच्छा रहा है और थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी रहा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रदर. आई एम वेरी लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ. वो एक अच्छा देवर है अभिनव. और हम दोनों एक्चुअली बहुत बार चिढ़ाते भी अभिजीत को सब मिला के. एंड सच अ जेंटलमैन. ही इज़ अ गुड बॉय एक्चुअली. ऐसे कुछ देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट इट. मैं बहुत आलसी हूँ पहले तो. और बेचारा मेरा काम वो बहुत करता था. जैसे कि मम्मी ने कुछ बोला चलो टमाटर लेके आओ, बट मैं वहाँ पे पैर फैला के मैं बैठ जाता था. बेचारा वो जाता था अपना बैग लेके, बेचारा सब कुछ लेके आता था. लेकिन मैं कुछ नहीं करता था, पूरा काम वो करता था. केतकी आई एम वेरी लकी लाइक शी विल बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. एंड मैं उससे अश्योर करता हूँ कि मैं उसके साथ एक ब्रदर जैसा रिलेशन रखूँगा. उसको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे आके शेयर करे. हम बड़े हैं, अच्छे से रखेंगे. मतलब वो एक ऑलरेडी हमारे फैमिली मेम्बर हो चुके हैं. वेलकम टू आवर फैमिली केतकी. It's like 100 times we have already imagined. मैं ही नहीं, even Ketu भी. But living in this dream is like next level. We can't express our feelings. All our families came together. दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए ही बने थे. हमसे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे फ्रेंड्स फैमिली उनको है. Ketu, you know right, I love you like anything. And हाँ, you also love me more than me. Yes, of course. I promise you, I will be there with you in any situation. Just मुझे मुड़ के देखना. I will be beside you. From the start, you're there for me, and I know that you will be there for me.
Yes, I'll miss my mom the most because मेरा बॉन्डिंग उनके साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे कभी कमी नहीं महसूस होगी क्योंकि आई थिंक अम्मा बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, जस्ट लाइक माई मॉम। अगर हो तुम